بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ محترم حاضرین، آج ہم آپ کو ایک لوہار کے بیٹے اور ایک راجکماری کی کہانی سنائیں گے۔ یہ کہانی نہایت ہی دلچسپ ہے۔ میری آپ سے محترمانہ گزارش ہے کہ ویڈیو میں اینڈ تک ضرور بنے رہے۔ پچھلے زمانے کا ذکر ہے۔ کسی گاؤں میں ایک لوہار اور اس کا لڑکا رہتا تھا۔ ایک دن لڑکا باپ سے کہنے لگا، ابا میرے لیے ایک چھری بنا دو جس کی دھار بہت تیز ہو۔ باپ نے کہا، بیٹے چھری بھلی نہ کٹاری، یہ تو بتاؤ تم نے چھری کا کیا کرنا ہے؟ بیٹے نے گول مول سا جواب دیا کہ بس مجھے چھری چاہیے۔ آخر بیٹے کے بے حد اصرار پر باپ نے لوہے کی چھری بنا دی۔ جب لڑکے کے ہاتھ میں ہتھیار آ گیا تو وہ شیر ہو گیا۔ لگا باپ کو دھمکانے ڈرانے کہ ابا فوراً راجا کے دربار میں جاؤ اور میرے واسطے راجکماری کا رشتہ مانگو، اگر نہیں مانگا تو میں چھری چلا کر تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ لوہار بیچارہ یہ سن کر خوف سے تھر تھرانے لگا۔ بیٹے کو چھری بنا کر دی تھی، اب اسے افسوس ہو رہا تھا۔ اب سوچنے لگا کہ کیا کروں، ادھر کنواں ادھر کھائی، اگر راجا سے رشتہ مانگنے گیا تو راجا مجھے مار ڈالے گا، اگر نہ گیا تو بیٹا مجھے مار دے گا۔ آخر بہت سوچ وچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ یوں مرنے سے وہاں مرنا بہتر ہے۔ چلو راجا کے پاس چلا جاتا ہوں، چاہے قتل ہی کیوں نہ ہو جاؤں، بات تو ہو ہی جائے گی۔ کہ لوہار راجا سے رشتہ مانگنے آیا تھا، اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہو کر گمنامی کی موت سے مرنے سے بہتر ہے کہ راجا کے ہاتھوں عزت سے میں مر کر مشہور ہو جاؤں۔ ایک دن لوہار جی کرا کر کے راجا کے پاس گیا اور اسے اپنے بیٹے کے لیے اس کی لڑکی کا رشتہ مانگا۔ یہ سن کر راجا کے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ میں تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے لڑکی کا رشتہ مانگ رہے ہو؟ دل تو چاہا کہ ابھی اسی وقت جلاد کو حکم دے کر اس کا سر قلم کروا دوں، لیکن وزیر سیانا تھا۔ راجا کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، مہاراج اسے مروا دیا تو خامخواہ جگ ہسائی ہو جائے گی، لوگ بات کا بتنگڑ بنائیں گے، ہم کس کس کی زبان پکڑیں گے؟ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اسے طریقے سے ٹال دیا جائے، سانپ بھی نہ مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ہم اسے ایسا سوال کر ڈالتے ہیں کہ اس کا جواب ساری زندگی نہ ڈھونڈ سکے گا۔ اگر گڑ دینے سے یہ مر جائے تو پھر زہر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بعد وزیر نے لوہار سے مخاطب ہو کر کہا، لوہار ہم تیرے بیٹے کی شادی راجکماری سے کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے لیے ہماری ایک شرط ہے، تیرا بیٹا کوئی ایسا کام کرے جو دنیا میں اس سے پہلے نہ کسی نے دیکھا ہو نہ سنا ہو۔ لوہار شرط سن کر واپس چل پڑا۔ اپنے زندہ لوٹنے پر اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ گھر آ کر اس نے اپنے بیٹے کو یہ بات بتائی۔ دونوں باپ بیٹے نے نگر کو الوداع کہا اور اس شرط کو پورا کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے گھنے جنگل میں پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ شیشم کے پیڑ کے چھاؤں میں ایک آدمی بیٹھا ہوا، زمین پر چاروں طرف پھول بکھرے ہوئے ہیں۔ آدمی نے چولہے میں اپنی ٹانگ رکھی ہے، پیر میں سے تراتر آگ کے شعلے نکال رہا ہے۔ چولہے پر کھولتے ہوئے تیل کی کڑھائی رکھی ہے اور وہ پکوڑے تل تل کے کھا رہا ہے۔ لوہار اس کے بیٹے نے جب یہ عجیب منظر دیکھا تو دل ہی دل میں کہنے لگا، یہ کام تو راجا نے کہیں نہ دیکھا ہوگا اور نہ سنا ہوگا، چلو یہی سیکھتے ہیں۔ لوہار اس آدمی سے مخاطب ہو کر بولا، اللہ کے بندے میرے بیٹے کو بھی اپنا شاگرد بنا لو اور اسے بھی اسی طرح پکوڑے تلنا سکھا دو۔ وہ بولا، میاں آگے چلا جا، آگے میرا استاد بیٹھا ہوا ہے، وہ تیرے بیٹے کو رکھ لے تو رکھ لے، مجھے شاگرد بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سن کر باپ بیٹا دونوں آگے روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے جا رہے تھے، آگے کیا دیکھتے ہیں کہ بیڑ کی چھاؤں میں ایک آدمی بیٹھا ہے، زمین پہ چاروں طرف بیڑ کا پھل بکھرا ہوا ہے۔ اس نے چولہے میں اپنی ایک ٹانگ ڈال رکھی، ایڑی سے تراتر آگ کے شعلے نکال رہا ہے۔ چولہے پر کھولتے ہوئے تیل کی کڑھائی رکھی ہے اور وہ جلیبیاں نکال نکال کر تل کے کھا رہا ہے۔ لاہور اور اس کے بیٹے نے جب یہ منظر دیکھا تو من ہی من کہنے لگے، ارے یہ کام تو پچھلے کام سے بھی مشکل ہے، یہ تو راجے نے نہ کہیں دیکھا ہوگا اور نہ ہی سنا ہوگا، چلو یہی سیکھتے ہیں۔ لوہار اس آدمی سے مخاطب ہو کر بولا، اللہ کے بندے میرے بیٹے کو بھی اپنا شاگرد بنا لو، اسے بھی اسی طرح جلیبیاں تلنا سکھا دو۔
वो बोला, मियाँ आगे चला जा, आगे मेरा उस्ताद बैठा हुआ, वो तेरे बेटे को रख ले तो रख ले, मुझे शागिर्द बनाने की इजाजत नहीं है। यह सुनकर दोनों बाप बेटा आगे रवाना हुए। चले जा रहे थे कि आगे क्या देखते हैं कि बैरी के घने पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा है। जमीन पर चारों तरफ मोतिये के मोतिये लाल सुर्ख बैर बिखरे हुए पड़े हैं। इसने चूल्हे में अपनी एक टांग डाल रखी है। पांव के अंगूठे में से तरातर आग के शोले निकल रहे हैं। चूल्हे पर वो गन्ने के रस भरी कड़ाही रखी हुई है। चूल्हे पर गन्ने के रस से भरी कढ़ाई रखी है और वो गुड़ बना बना के रख रहा है। लोहार और इसके बेटे ने जब यह मंजर देखा तो मन ही मन कहने लगा, अरे यह काम तो पिछले काम से भी मुश्किल है। यह तो राजा ने ना कहीं देखा होगा ना सुना होगा। चलो यही सीख लेते हैं। लोहार इस आदमी से कहने लगा, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को भी अपना शागिर्द बना लो, इसे भी इसी तरह गुड़ बनाना सिखा दो। वो बोला, ठीक है, मैं तेरे बेटे को अपना शागिर्द बना लेता हूँ, इसे अपने पास रख लेता हूँ। यह लो चाबियां, वो सामने कमरा है, इस कमरे का दरवाजा का ताला खोलो, अपने बेटे को अंदर बैठाकर बाहर से ताला लगा दो। लोहार ने इस आदमी की हिदायत पर हर अमल किया। जब बेटे को कमरे में बंद करके जाने लगा तो आदमी ने इसे चाबियां वापस ले ली और कहा, अब 1 साल के बाद वापस आना। लोहार अपने घर लौट गया। इधर लड़का कमरे में भूखा प्यासा बैठा था, इंतजार कर रहा था कि कोई आए और इसे बाहर निकाले, लेकिन पूरा दिन गुजर गया और कोई ना आया। अब जो लड़के ने जरा गौर से कमरे में चारों तरफ देखना शुरू किया तो इसके रोंगटे खड़े हो गए, खून खुश्क होने लगे। इसकी आंखों के सामने एक खौफनाक नजारा था। कमरे के फर्श पर हर तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थी। लड़के ने सोचा, जाने मुझसे पहले कितने लोग इस मौत के कमरे में जान से हाथ धो चुके हैं, मेरा अंजाम भी इनसे कुछ मुख्तलिफ ना होगा। मैं और मेरा बाप बाहर बैठे इस आदमी के धोखे में आ गए। अब मुझे भी यहाँ भूखे प्यासे एरिया रगड़ रगड़ कर मरना पड़ेगा। एक रोज मेरी हड्डियां भी यहीं फर्श पर बिखरी हुई होंगी। यह सुनकर लोहार के लड़के की आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए और इसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। जब रोने से दिल का गुबार निकल गया तो एक कोने में जाकर जमीन पर बैठ गया। दिल ने कहा, जब तक सांसें हैं तब तक आस है। लड़के ने जमीन पर से एक बड़ी सी हड्डी उठाई जिसका सिरा छुरी से ज्यादा तेज और तीखा था और दीवार खोदनी शुरू कर दी। धीरे धीरे दीवार से मिट्टी गिरती रही। आखिर रात दिन रात की लगातार मेहनत रंग लाई। दीवार में इतना बड़ा सुराख हो गया कि एक आदमी इससे गुजर सकता था। जब सुराख में से गुजर कर लड़का दूसरी तरफ गया तो देखता है कि एक और कमरा इसका मुंतजिर है। कमरा खूब सजा हुआ है, सब्ज रेशमी पर्दे लटक रहे हैं, कीमती सुर्ख कालीन बिछा हुआ है। कमरे में एक मुसहरी रखी है। जाली के पर्दे के पीछे सांस लेते हुए किसी बहुत हसीन जिस्म का एहसास होता था। जो ही लोहार के लड़के ने पर्दा सरकाया, इसकी आंखें खुली की खुली रह गई। क्या देखता है, खूबसूरत लड़की बिस्तर पर लेटी सो रही है और इसके लंबे लंबे बाल खुले हुए। लड़का कुछ देर दीदे फाड़ फाड़ कर इसे देखता रहा। इस दौरान में लड़की की आंख खुल गई। अपने कमरे में एक अजनबी नौजवान को देखकर पहले तो वो घबराई, उधर लड़का भी डर गया। खुदा खैर करे, जाने क्या माजरा है। थोड़ी देर बाद दोनों कुछ मुतमईन हुए तो लड़की ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, आ जाओ मेरे पास, इस पर बैठ जाओ और बता के तू कौन है और यहाँ कैसे पहुंचा। यह सुनकर लोहार के लड़के ने हमद बांधी और इसने अपना सारा किस्सा कह सुनाया। पहले तो लड़की ने इसे खाने पीने को कुछ दिया। जो शख्स बाहर बैठा गुड़ निकाल कर खा रहा है और जिसने तुझे कमरे में कैद किया वो मेरा बाप है, मैं भी जादूगरनी हूँ, गम ना कर, मैं तुझे जादू सिखाऊंगी। लड़की जादू में अपने बाप से भी 2 दर्जे आगे थी। अगर बाप 14 दर्जे पर था तो बेटी 16 दर्जे पे थी। लड़की ने लोहार के लड़के को इल्म सिखाना शुरू कर दिया। इसके अलावा इसे किस्म किस्म के लजीज फल दिए। इसी तरह 1 बरस गुजर गया मगर लोहार बेटे का पता करने के लिए ना आया। इसने सोचा लड़का अच्छी तरह खूब सीख ले, कामिल जादूगर बन जाए तो ही इसे लेने के लिए जाऊंगा। इस दौरान में लड़का इस हसीन लड़की साहिरा से जादू सीखता रहा और फिर एक दिन अपने फन में माहिर हो गया। 2 बरस के बाद लोहार आया तो देखता है कि वो आदमी इसी तरह बेरी के घने पेड़ के नीचे बैठा है। जमीन पर चारों तरफ इसी तरह
लाल सुर्ख बैर बिखरे पड़े हैं। इस शख्स ने पहले की मानिंद चूल्हे में अपनी एक टांग डाल रखी है, पांव के अंगूठे से आग निकल रही है, चूल्हे पर वही बड़ी कढ़ाई रखी है और इसी तरह गुड़ बना बनाकर खा रहा है। लोहार ने इससे पूछा, अल्लाह के बंदे मेरा बेटा कहाँ है? 2 साल पहले मैं इसे तेरी शागिर्दी में तेरे पास छोड़ गया था। वो शख्स कहने लगा, मैं तो 2 साल से यहाँ ही बैठा हूँ, गुड़ बना बनाकर खा रहा हूँ। ना मुझे फुर्सत मिली, ना मैंने जाकर देखा। तू अपने हाथ से अपने बेटे को सामने वाले कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा गया था। यह ले कुंजियां और अपने हाथ से ताला खोल ले और अपने बेटे से मिल ले। बाप ने सुना तो चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। एक रंग आता एक रंग जाता, यह सोचकर 2 साल बाद अब तो बेटे की हड्डियां ही मिले तो मिले, जिंदा मिलना तो नामुमकिन है। गुड़ खाने वाले आदमी को गालियां देता हुआ लोहार भागता हुआ कमरे की तरफ गया। ताला में चाबी घुमाई, अंदर बैठी लड़की के कान में जब ताला खुलने की आवाज पड़ी तो लड़के से कहने लगी, अगर मेरा बाप हुआ तो हम दोनों को मार डालेगा, अगर तेरा बाप हुआ तो हम बच जाएंगे। लोहार दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। कमरा खाली था। दीवार के सुराख में से गुजरकर दूसरे कमरे में पहुंचा। क्या देखता कि सामने मुसारी पर एक खूबसूरत लड़की, इसका बेटा बैठे हुए है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अपने बेटे को जिंदा सलामत देखकर बाप की जान में जान आ गई। दौड़कर बेख्तियार बेटे को सीने से लगाया और खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया। इसके बाद बेटे ने बाप से लड़की का तारुफ कराया। जब असली सूरत हाल का लोहार को अंदाजा हुआ तो वो कांप के रह गया। इसने बेटे को बचाने पर लड़की का शुक्रिया अदा किया। वो हसीन साहिरा कहने लगी, तुम दोनों के बचने की अब फकत एक ही सूरत है, वो यह कि ऐ लोहार, तू दुआएं देता हुआ रोता पीटता बाहर जा और मेरे बाप से कह के हाय हाय मेरा बेटा भूखा प्यासा सिसक कर मर गया, तुमने इसे कमरे से निकाला ही नहीं। अब मुझे इतनी इजाजत तो दे कि इसकी हड्डियां किसी कपड़े में बांध कर रख के ले जाऊं और कब्र में दफन कर दूं। लोहार दहाइया देता हुआ हाय हाय करता कमरे से निकला। जिस तरह लड़की ने समझाया था इस तरह किया। जादूगर बोला, हाँ हाँ हड्डियां लेकर जा, मैंने इनका क्या करना है। बूढ़े साहिब ने हड्डियां ले जाने के लिए एक बड़ी सी सफेद चादर भी फराहम कर दी। लोहार दोबारा कमरे में आया। लड़की की बताई हुई तरकीब के मुताबिक बेटे को चादर में छुपा लिया। जब बेटे को चादर में लिपटते हुए कांधे पर लटकाए कमरे से बाहर जाने लगा तो लड़की बोली, मेरी एक बात पल्ले से बांध लो, मैंने तेरे बेटे को जो जादू सिखाया है इसका इस्तेमाल रास्ते में ना करना। मैंने तेरे बेटे को जो जादू सिखाया है इसकी मदद से कहीं रास्ते ही में कमाई करना शुरू ना कर देना। घर पहुंचकर जो मर्जी हो करना। अगर तूने रास्ते ही में अमीर होना शुरू कर दिया तो मेरे बाप को पता चल जाएगा और फिर वो तुझे और तेरे बेटे को नहीं छोड़े। खूबसूरत साहिरा अंदर कमरे में ही रही। लोहार ने इससे कहा, भाई कि बेटी तू भी किसी तरह छुप छुपाकर हमारे साथ चलो, अपने संगदिल जालिम बाप की कैद से रिहाई हासिल करो। लेकिन वो लड़की ना मानी और बोली, इस तरह हम तीनों पकड़े जाएंगे, तुझे और तेरे बेटे को भी आजादी ना मिल सकेगी। यूं भी मेरा मरना जीना अब यही है, यहाँ से भागकर कहाँ जाऊंगी। लोहार बेटे को कपड़े में लपेटते कांधों पर उठाए कमरे से निकला। इसने चाबियों का गुच्छा ही दूसरी जादूगरनी की तरफ फेंका। जादूगर ने इसके जानिब कुछ ध्यान नहीं दिया, चाबियां उठाई और दोबारा अपने काम में मशरूफ हो गया। जब लोहार अपने बेटे को उठाए जंगल में काफी दूर निकल आया तो एक जगह इसने अपने बेटे को कांधे से नीचे उतारा, इसे चादर से बाहर निकाला। फिर दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इनकी जान बच गई। अब बाप बेटे ने दोबारा सफर का आगाज किया। चले जा रहे थे, आखिरकार जंगल से बाहर निकल आए। अब इनके सामने सरसब्ज और शादाब खेत फैले हुए थे। एक जगह देखते हैं कि रहट चल रहा था, बैल घूम रहा था और कुएं से पानी निकल रहा था। पास ही एक जमींदार खड़ा है। लोहार का लड़का बाप से कहने लगा, अब्बा मैं तुझे अपना जादू दिखाता हूँ, लेकिन याद रखना मेरा रस्सा उतार लेना, वो ना बेचना। इतना कहकर लड़के ने कुछ पढ़ा और इसी वक्त बैल बन गया। दोनों चलते चलते जमींदार के पास पहुंचे। जमींदार ने जब इस कदर जवान और पला हुआ बैल देखा तो लोहार से कहने लगा, बाबा जी क्या आपने बैल बेचना है? लोहार बोला, हाँ। जमींदार ने पूछा, क्या लोगे? लोहार बोला, 5.25 रुपए। जमींदार को सोच में
डूबे देखकर लोहार कहने लगा, मेरा बैल बहुत अच्छा है, तू उसे अपने रहट के साथ जोड़कर देख ले, अगर दिल मुतमईन हो तो खरीद लेना। जमींदार ने बैल रहट से जोड़ा, बैल खूब पानी निकालने लगा, इसके पहले वाले बैल से भी ज्यादा। जमींदार खुश होकर बैल खरीदने पर राजी हो गया। लोहार कहने लगा, लेकिन मैंने बैल के साथ रस्सा नहीं देना। जमींदार बोला, कोई बात नहीं, तुम अपना रस्सा उतार लो, मैं खुद ही नया रस्सा डालूंगा। जमींदार ने 5.25 रुपए कीमत अदा कर दी और बैल खरीद लिया। जब लोहार काफी दूर चला गया तो बैल ने एकाएक रुख मोड़ा और भाग खड़ा हुआ, सीधा लोहार के पास पहुंचा और वहां जाकर फिर लड़का बन गया। जमींदार बेचारा डंडा पकड़े हाँफता कांपता दौड़ा दौड़ा पीछे आया और बोला, लोहार से पूछने लगा, बाबा तुमने मेरा बैल तो नहीं देखा? लोहार बोला, बैल तो अभी अभी मैं तेरे हवाले करके आया हूँ, अब वो किधर है मुझे क्या पता। बेचारे जमींदार के वहन और गुमान में भी नहीं आ सकता था कि लोहार के साथ जो लड़का जा रहा है वही असल में इसका भागता हुआ बैल है। जमींदार हैरान परेशान लौट गया। लोहार इसके बेटे ने जादूगर की बेटी की नसीहत पर अमल नहीं किया और रास्ते में ही जादू की मदद से कमाई करना शुरू कर दी। अब उन्हें उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। बड़े जालिम जादूगर को पता चल गया कि लोहार का लड़का जिंदा सलामत है और मेरी कैद से फरार हो चुका है। मेरी अपनी बेटी ने इसे जादू का इल्म सिखा दिया है और एक मुकम्मल कामिल जादूगर बना दिया है। वाकई घर का भेदी लंका ढाल। जालिम जादूगर ने जादू के जोर से एक बड़े फकीर का रूप धारा और इससे पहले ही आगे रास्ते पर आकर बैठ गया। लोहार के लड़के को चूंकि बड़ी कामयाबी मिली थी, इसलिए इसने फिर दोबारा स्वांग भरने के बारे में सोचा कि अब इसने ऊंट बनने का फैसला किया और आप बाप से बोला, अब बाबा इस दफा तुम मेरे पूरे 9 रुपये मांगना, 1 रुपया भी कम ना करना, लेकिन याद रहे मेरे साथ नकेल हरगिज ना देना। इतना कहकर लोहार के लड़के ने मंत्र पढ़ा और फौरन ऊंट बन गया। लोहार ऊंट की नकेल पकड़े चलता चलता जादूगर के पास आ पहुंचा, जो बूढ़े फकीर की शक्ल बनाए इनका इंतजार कर रहा था। फकीर ने लोहार से पूछा, बाबा जी क्या ऊंट बेचना है? फकीर ने लोहार के दिल की बात कह दी। लोहार ने खुश होकर बोला, हाँ बेचना है। फकीर ने पूछा, क्या लोगे? लोहार ने कहा, 9 रुपए। फकीर ने इसी वक्त जेब से 9 रुपए निकाले और लोहार के हाथ में थमा दिए और ऊंट खरीद लिया। अब लोहार को याद आया और बोला, मैंने ऊंट के साथ नकेल नहीं देनी है। फकीर भी जादूगर था, नकेल का भेद और अहमियत से वाकिफ था और बोला, मैंने तुम्हें मुंह मांगी कीमत अदा की है, मैंने ऊंट नकेल के साथ खरीदा है, इसलिए नकेल तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। गर्ज इनके बीच इतनी तू मैं हुई कि राह चलते मुसाफिर रुक गए और इर्द गिर्द के खेतों में काम करते किसान भागते भागते आए। देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। फकीर ने हुजूम से मुखातिब होकर कहा, लोगों को क्या तुमने आज तक कभी यह सुना है कि कोई जानवर बिक जाए और बेचने वाला खरीदने वाले के हवाले जानवर करने से पहले इसके गले से रस्सा उतार ले? देखो देखो, यह शख्स जानवर की पूरी कीमत वसूल करने के बाद एक जरा सी नकेल के लिए मुझसे झगड़ा कर रहा है। फकीर की बात में दलील थी। जब लोगों को पता चला कि यह तू तकार महज नकेल के लिए हो रही है तो सबने लोहार को झूठा करार दिया। इतने लोगों के आगे लोहार की पेशगोई ना चली। इसे ना चाहते हुए भी ऊंट के साथ नकेल भी फकीर के हवाले करना पड़ी। फकीर जो फिल हकीकत अब जादूगर के कब्जे में था, चूंकि इसकी नकेल जादूगर के हाथ में थी, इसलिए अब यह मुमकिन नहीं हो रहा था कि वो पहले की तरह खरीदार के लाइल्मी में पीछे से भागे और वो दोबारा इंसान बन जाए। जादूगर की बेटी की शागिर्दी में रहने के बाद वो कामिल जादूगर बन चुका था। इसने मंत्र पढ़ा और कबूतर बनकर उड़ गया। जादूगर के हाथ में पकड़ी नकेल का पिछला सिरा फट से नीचे गिरा। इसने मुड़कर देखा तो ऊंट का कहीं नामो निशान भी न था और नकेल जमीन पर सरक रही थी। जादूगर ने भी फौरन मंत्र पढ़ा और बाज बनकर कबूतर के ताकों में उड़ने लगा, लेकिन लड़का भी इससे कुछ कम नहीं था। शेर पर सवा शेर। कबूतर ने आसमान से जूं नीचे की तरफ देखा तो गांव की औरतें मिट्टी खोद खोद के घरों में पोछा लगाने के लिए निकाल रही थी। चिकनी मिट्टी गांव की औरतें निकाल रही थी ताकि अपने कच्चे घरों की दीवारों और फर्श पर पोछा लगा सके। इससे पहले के बाज अपने पंजों से कबूतर को पकड़ता, लड़के ने मंत्र पढ़कर फौरन रूप बदला और मेढक बनकर छप्पड़ में गिर गया। यह देखकर बूढ़ा जादूगर बोला बन गया।
उड़ता उड़ता छप्पड़ में उतरा और चोंचे मारकर पानी में इसे तलाश करने लगा कि भी छप्पड़ में पोछा लगाने के लिए मिट्टी को खोद को निकाल रही थी, हाथों की लंबी उंगलियों से मिट्टी निकाल रही थी। लड़के ने फिर फौरन मंत्र पढ़ा और मेढक से छल्ला बनकर मिट्टी के साथ ही लड़की की उंगली में चला गया। बोगला भगत यानी जादूगर अब इसकी छोटी उंगली से तो छल्ला निकालने से रहा। थोड़ी देर बाद औरतें मिट्टी तसल्लों में डालकर अपने सरों पर रखे घड़ों की ओर चल पड़ी। बोगला इनके साथ साथ इनके सरों पर दौड़ने लगा। जैसे ही वो लड़की अपने घर पहुंची, जादूगर बोगले से फकीर बन गया और इसकी चौखट पर सदा लगाने लगा। लड़की आटा छन्ने में डालकर दरवाजे पे आई तो वो फकीर बोला, बेटी मैंने आटा नहीं लेना, मैंने तो वो छल्ला लेना है जो तेरे दाएं हाथ की छोटी उंगली में है। यह सुनकर लड़की को बहुत गुस्सा आया। वह फकीर को बुला बुला कहने लगी, तू कौन होता है मुझसे छल्ला मांगने वाला। जब लड़की की माँ के कान में यह तुक पड़ी तो वह भी दरवाजे पे आ गई। अब जो इसे असल बात का पता चला तो वो बेटी पर बहुत खफा हुई। माँ शक्की मिजाज औरत थी, बेटी को खूब गालियां दी और कहने लगी, तू तो मिट्टी लाने के लिए गई थी, छोटी उंगली में भला छल्ला कहाँ से पहना कर चली आई। बता किस दोस्त ने दिया है तुझे, इसे उतार और फौरन फेंक दे। आ लेने दे तेरे बाप को, करती हूँ इससे बात, इससे पहले कि तू कोई चांद चढ़ाए मैं तेरे हाथ पीले करूंगी। लड़की बेचारी अजीब मुसीबत में फंस गई। इसने घबराकर अपनी छोटी उंगली से छल्ला उतारकर फेंक दिया। फकीर इंतजार में आंख रखे हुए था। इसने छल्ला पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। लड़का फौरन छल्ले से फिर कबूतर बन गया और उड़ गया। जादूगर फकीर से दोबारा बाज बनकर इसके पीछे उड़ने वक्त राजा कचहरी लगाए बैठा था। इससे पहले के बाज पकड़ता लड़का उड़ते उड़ते कबूतर इसने छल्ले से सोने का ताड़ बन गया और राजा के ताज के अंदर गिर गया कि यहाँ से तो बाज मुझे नहीं निकाल सकेगा। जादूगर बाज से दोबारा फकीर बन गया। वो राजा के सामने आया और सदा बुलंद की। राजा बोला, मांग क्या मांगता है। फकीर ने कहा, महाराज तेरे ताज के अंदर जो सोने का तार है वो मुझे दे दे। यह सुनकर राजा को बहुत हैरत हुई। वो सोचने लगा कि मेरे ताज में सोने का तार कहाँ से आ गया। इसने एक हाथ ऊपर उठाया कि ताज में डालकर जरा देखे तो सही। लड़का सोने के तार से तस्बीह बनकर राजा के हाथ में आ गया। राजा ने ताज में जैसे ही तस्बीह निकाली, तस्बीह की सारे मोती टूटकर नीचे फर्श पर गिर गए और बिखर गए। फकीर फौरन मुर्ग बनकर उन्हें चुनने लगा। लड़के ने फौरन मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते बिल्ला बनकर मुर्गे को मार डाला। राजा हैरान परेशान यह सब कुछ देख रहा था। इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा अचंभा इसने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। इधर लड़का जादूगर को मारने के बाद दोबारा अपने असली रूप में आ गया और आगे बढ़कर लड़का का रूप लेकर राजा के रूबरू खड़ा हो गया। राजा अभी तक हैरत में डूबा हुआ था। बमुश्किल बोला, यह सब क्या माजरा है। इसकी आवाज कहीं बहुत दूर से आती हुई महसूस हो रही थी। लड़के ने कहा, महाराज बताइए, यह काम आपने आज तक कभी देखा या सुना है। राजा ने हैरत से मुंह में उंगलियां दबाए हुए बोला, नहीं, कभी नहीं। इस पर लड़के ने कहा, महाराज अब अपना अहद पूरा कीजिए जो आपने मेरे बाप से किया था। मैं इसी लोहार का लड़का हूँ। मैंने भरी कचहरी में इतने लोगों के सामने आपकी शर्त पूरी कर दी है। अब आप अपना वादा पूरा कीजिए, मुझे राजकुमारी का रिश्ता दीजिए। राजा के लिए अब कोई रास्ता नहीं रहा था। इसे मजबूरी में हाँ करना पड़ी और बेटी का रिश्ता देना पड़ा। चंद दिन बाद लोहार अपने लड़की के सर पर सेहरा लगाए घोड़ी पर बैठा बारात के लिए राजा के महल में आ गया। धूमधाम से शादी हुई। लोहार का लड़का राजा का दामाद बन गया। चूंकि राजा का कोई बेटा नहीं था इसलिए इससे ही वली अहद बना लिया। चंद सालों बाद जब राजा मर गया तो लोहार का लड़का तख्त पर बैठा और निहायत आन बान से हुकूमत करने लगा। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।